This is Ashish Jain. Today we will do an illustration on regression analysis. Now, before we start this topic, we need to focus on two basic terms. First one is regression and another one is correlation. Now, what is regression? Suppose we have two variables, x and y, or let's say take an example, price and demand. So, what is x and what is y? So, x here is independent variable and y here is dependent variable. ऐसा क्यों होता है? Because x is a explanatory variable and y is a responsive variable. कि x कैसे उस explain करेगा कि y कैसे behave करे. So x कैसे explain करेगा कि y को response करना पड़े. Like suppose price and demand. So price क्या होगा यहाँ पे? आपका x variable that is independent variable and y will be the demand. Okay. Now second term is correlation. Correlation tells the relationship between the variables, or you can say what is the relationship क्या है उन दोनों में between x and y. Suppose x, like हमने example लिया price and demand. Now there is a negative relation between x and price and demand. So वो कैसे पता लगेगा हमें? With the help of correlation. Okay. So this is the basic terms of regression and correlation. Now let's do an example for regression. First illustration. First one is a teacher is interested in knowing how the number of students absent on a given day is related to temperature of the day. The following data indicates the number of absentees and the mean temperature. आपको दो वेरिएबल गिवन है, temperature and absentees. As the temperature keep rising, the absentees first one is fall down, that is from 12 to 7, 5 to from then 7 to 5, then 5 to 4, then 4 to 1, and then between 25 to 30 it will again increase. Okay, so यहाँ पर देखिए आपका x वेरिएबल क्या होगा and y वेरिएबल क्या होगा. So x will be the temperature and y will be the absentees. Then हमें क्या करना है? First one is prepare a generalized worksheet to determine the regression line. Assume a linear relation between the variables. Second, plot a linear regression line to show the relationship between the variables. Also plot actual axis on the same graph. Then, what will be the number of absentees which the temperature rises to 47 degrees Celsius? And last one is, what is the correlation coefficient between the variables? Okay, so now let's start with this question in Excel. So let's suppose first give in heading So we have two variables. First one is temperature and second one is absentees. Temperature is 5 to 10. Sorry, 5 to 45. And the number of absentees 12, 7, 5, 4, 1, 2, 5, 6 and 7. And they have also asked if the temperature rises to 47, what will the total number of absentees? Okay, and then we need to find also here intercept, slope and correlation.
So this is the basic format for the regression. Now there are two variables, temperature and absentees. So we will find out the project number of absentees कितने होंगे with the help of these intercept, slope and correlation. अब देखिए इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या होते हैं. जैसे देखिए हमने एग्जांपल लेता है कि प्राइस एंड डिमांड का. इंटरसेप्ट मीन्स क्या होगा यहाँ पर कि मान लीजिए अगर प्राइस अगर 0 हो तो डिमांड क्या होगी. तो 0 पॉइंट पे कुछ डिमांड तो होगी, वो क्या बताता रहता है, इंटरसेप्ट बताता है. स्लोप क्या बताता है, बेसिकली प्रोपोर्शनेट. दैट मीन्स एक्स एंड वाई का जो रिलेशन है वो कितना प्रोपोर्शनेट है. मीन्स पॉजिटिव होगा तो कितना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कितना नेगेटिव होगा, वो कैसे बताता है, स्लो बताता है. मीन्स एक तरह से कोई जो रिग्रेशन लाइन होती है उसकी जो स्टीपनेस बताता है, दैट इज कॉल्ड स्लो. एंड कोरिलेशन ये वर्डल दैट की एक रिलेशन डिफाइन करता है. ओके सो कैसे करेंगे, देखिए इंटरसेप्ट कैसे करेंगे, इक्वल टू इंटरसेप्ट. देखिए क्या लिखा है, नॉन वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पर एब्सेंटीज, तो सेलेक्ट ऑल दिस वैल्यू, देन नॉन एक्स. ओके ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर. ओके इंटरसेप्ट सेम फॉर स्लोप, इक्वल टू स्लोप ब्रैकेट ओपन, नॉन वाई comma non x. This is a slope. For correlation, equal to correl. First we will take this temperature and then absentees. Okay, so this is a correlation. अब देखिए प्रोजेक्टेड ऑफ एब्सेंटीज कैसे करना है. देखिए हमारे जो इक्वेशन होती है, देखिए इक्वेशन क्या होती है प्रोजेक्टेड इक्वेशन की, y इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स. y इक्वल टू a इंटू बी एक्स. वाई क्या डिफरेंट करता है आपको, वाई वेरिएबल क्या आपका, कौन सा वेरिएबल वाई आपका, वाई होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके यहाँ पर ए क्या आपका इंटरसेप्ट एंड बी क्या आपका स्लोप. सो ए क्या इंटरसेप्ट यानी कि कुछ फिक्स्ड आपका कुछ कोई है ये कि प्राइस 0 पे देखिए डिमांड तो कुछ ना कुछ होगी, तो ये आपका बताता है इंटरसेप्ट. बी यानी कि टोटल जो आपकी ये वेरिएबल है आपका, ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है सो बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या हमारा टेम्परेचर. ठीक है तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, इक्वल टू ए क्या आपका इंटरसेप्ट ए प्लस बी इंटू एक्स, बी क्या आपका स्लोप, बी इंटू एक्स, एक्स क्या आपका यहाँ पर टेम्परेचर. ठीक है नाउ प्रेस एंटर. सो दिस विल द प्रोजेक्टेड वैल्यू. सो आगे इसको ड्रैग करना है, सो दैट मीन्स वी नीड टू फिक्स वैल्यूज. क्या क्या फिक्स करेंगे यहाँ पर, इंटरसेप्ट एंड स्लोप. टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा बिकॉज इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड देन ड्रैग इट टू डाउन. ओके देखिए यहाँ पर हम कहेंगे प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ एब्सेंटेज परसेंट निकाल रहे हैं, तो इधर डेसिमल में होंगे नहीं, दैट मीन्स वी नीड टू राउंड कैसे करेंगे. यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेस को हटाने के लिए सेम आप इसको भी कर सकते हैं. ओके सो प्रोजेक्टेड, सो दैट मीन्स 47 डिग्री पे आपका जो
एब्सेंट होकर प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ एब्सेंट कितने होंगे 4. So this is all about the regression. ओके ना देखिए अब हमसे क्या क्या पूछा था, प्रिपेयर अ जनरल वर्कशीट टू डिटरमाइन regression line assuming a linear relation between them. वो हमने कर लिया. अच्छा अब हमें प्लॉट करना है. प्लॉट कैसे करने के, सेलेक्ट ऑल दीज सेल्स, go to insert, select scatter chart. So this will be your chart. डाटा के चार्ट दे दें, सॉरी select all these cells, go to insert, scatter chart. यहाँ पर इसको टाइटल दे सकते हैं आप, regression analysis. ओके यहाँ पर भी देखिए आप इसको दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं. यहाँ पर लेफ्ट में देखिए जा सकते हैं ऐड एलिमेंट चार्ट, एक्सेस टाइटल दे सकते हैं. देखिए यहाँ पर इस एक्सेस का देखिए नाम क्या होगा आपका, एक्सेस पे क्या आपका टेम्परेचर, ऐसे यहाँ पर आप दे सकते हैं. एब्सेंटेज, ओके सो दिस विल योर चार्ट. आप यहाँ पर दे सकते हैं. देखिए जो ऑरेंज है वो आपका क्या रिग्रेशन लाइन है, एंड यहाँ पर जो आपको ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, ठीक है, ये आपके एब्सेंटेज है एज पर दी योर गिवन डेटा, एंड दिस इज योर रिग्रेशन लाइन. ओके सो थैंक यू सो मच.